بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہم آپ کا IAS کا ایک ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ ٹائٹل ہے آج آپ کے لیسن کا رواداری۔ رواداری کیا میننگ ہوتے ہیں رواداری کے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ثنا شاباش، دوسروں کا لحاظ کرنا اور برداشت کرنا۔ برداشت کرنے سے مراد کیا ہو سکتی ہے یہاں پہ بیٹا رواداری سے؟ مینز آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے ہر انسان کی سوچ، اس کا جو ہے طریقہ کار، اس کا مذہبی عقیدہ، اس کی عادات، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ تو بیٹا جو چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، ہمیں پرسنلی ذاتی طور پہ جو چیز پسند نہیں ہوتی، اس کے باوجود کسی دوسرے انسان میں اگر ہم اس قسم کی کوئی عادت دیکھتے ہیں، کوئی اس کا طریقہ کار ایسا دیکھتے ہیں جو ہمیں ناپسند ہو، اس کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جو چیز آپ کو نہیں پسند، اس پہ آپ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دو، انہیں منع کرو۔ منع ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کا بھی ایک اسلام نے طریقہ کار وضع کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو اسلام میں جو ہے وہ بے لگام نہیں چھوڑا گیا۔ ہر چیز کا ایک پراپر طریقہ کار ہے، ایک باقاعدہ ضابطہ ہے، جس کے تحت رہتے ہوئے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ رواداری۔ رواداری دیکھیے ذرا، سیکنڈ پوائنٹ بھی ہمارا یہی ہے کہ اسلام میں دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا رواداری کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں صرف مسلمان تو نہیں رہتے نا، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ جی بالکل، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر جو علاقہ یا ملک ہوتا ہے نا، اس کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہم پاکستان میں ہیں، ہمارے رسم و رواج اور طرح کے ہیں، رہن سہن کا طریقہ اور ہے۔ اگر ہم پاکستان سے باہر کسی دوسری جگہ پہ جائیں گے تو ان کا طریقہ کار ہم سے مختلف ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ اگر ہم کسی دوسری جگہ پہ جائیں یا کسی دوسرے ملک کے لوگ ہمارے پاس آئیں رہنے کے لیے ہمارے ساتھ، تو ان عادات کو، ان چیزوں کو برداشت کرنا جو کہ ہمارے مزاج کے خلاف ہوں، وہ اسلام میں رواداری ہے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی سارے بچوں کو رواداری کیا ہوتی ہے؟ یعنی برداشت کر لینا دوسرے کی بات کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کے مذہبی عقائد کو۔ اسلام میں بیٹا اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، رواداری کی۔ اسلام ہمیں رواداری کا درس دیتا ہے۔ آپ نے اپنی IAS کی بکس میں جگہ جگہ پہ پڑھا ہے کہ جنگ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کے ساتھ کس قسم کا طریقہ کار اپناتے تھے۔ پڑھا ہے نا آپ نے؟ سب کو معاف کر دیا تھا۔ شاباش، کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا نا، جب مکہ فتح کر کے آپ واپس آئے تھے ہجرت مدینہ کے بعد، تو پھر ان کی ساری جتنی بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی، ایذا پہنچائی تھی آپ کے ساتھیوں کو، آپ نے وہ سب معاف فرما دیا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ رواداری۔ رواداری تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ تھا کہ آنے والے جو مسلمان ہیں، یعنی ہم لوگ جو ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کو، اسی عملی نمونے کو جو ہے وہ فالو کریں، اس کی پیروی کریں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے بیٹا، لا اکراہ فی الدین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے سامنے کوئی غیر مسلم ہے جو کہ اسلام قبول جس نے نہیں کیا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو اسلام ہمیں پھر بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی کریں، ان پر ظلم کریں یا ان سے بدلہ لیں۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ اس لیے اسلام نے ہمیں رواداری کا درس دیا ہے۔ ایک دفعہ بیٹا اسلام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کا ذکر ہے، دور مبارکہ کا، کہ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں پہ نا نجران کا ملک تھا ایک، وہاں پہ مسیح ہوتا ہے بیٹا، عیسائی جس کو ہم بولتے ہیں، جو اسلام قبول جنہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، ان کا ایک وفد آیا تھا آپ کے پاس۔ وفد ہوتا ہے جب کسی بھی قبیلے کے یا کسی بھی مذہب کے چند معزز لوگ مل کے کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا، 5 6 8 10 افراد مل کے کسی گروپ کی فارم میں، جیسے ہم اب گروپ کہتے ہیں، اسی کو اردو میں بیٹا وفد کہتے ہیں۔ ایک وفد آیا تھا آپ کے پاس نجران سے نا، وہ غیر مسلم تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مہمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے یا جو بھی تھا۔ آپ نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا غیر مسلم ہونے کے باوجود، اور انہیں اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کسی اور مقصد کے تحت ملنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد اسلام قبول کرنا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر غصہ نہیں کیا،
ठीक है, उन्हें बुरा भला नहीं कहा, उन्हें मस्जिद नबवी से निकाल नहीं दिया कि भाई आप तो हमारी बात नहीं मान रहे, हम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, तो हम आपको क्यों अपनी मस्जिद में ठहराएंगे। इस तरह किस्म का कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द अमल ज़ाहिर नहीं फरमाया था, बल्कि आपने क्या किया, आपने उन्हें जिस काम के सिलसिले में वो आए थे उस हवाले से उनके साथ बड़ी अच्छी तरह से मामला तय किए, और जब उनकी इबादत का टाइम हुआ ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी ही के एक कोने में उन्हें अपने तरीके से अपनी इबादत करने की भी इजाज़त दे दी थी। देखिए ये किस कदर बड़ी बात है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप इस्लाम की जो भी हमारी रवायात हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने अमली नमूने पेश किए हैं, ये अब हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही हैं हमारी सोसाइटी में से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो वाक़या मैंने अभी आपको सुनाया है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं सुनाया, ये आपकी बाकायदा IAS की बुक में कोटेड है, दर्ज है आपकी IAS की बुक में, श्याम की बुक में से ही मैंने ये पढ़ा है अभी। तो देखिए किस कदर ये मतलब अच्छी बात है, और उन लोगों के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दीन इस्लाम का कितना अच्छा इम्पैक्ट गया होगा, कितना अच्छा तासुर गया होगा कि ऑल्दो हमने इनका दीन कबूल नहीं किया, इनकी दावत कबूल नहीं की, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से मामला तय किए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए भी एक इसमें सबक मौजूद है कि अगर आपसे किसी किस्म का कोई गैर मुस्लिम मामला करता है, या आपसे आपका वास्ता किसी के साथ ऐसे पड़ता है, तो आपको भी मुसलमान होने की हैसियत से बहुत अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना है, ओके। इसके बाद एक और पॉइंट है बेटा, देखिए कि अहद खिलाफत में भी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों का एहतराम किया गया था, ठीक है। अहद खिलाफत क्या है, पहले तो मुझे ये बताएं ज़रा, पता है किसी बच्चे को अहद खिलाफत? 4 खुलफा राशिदीन कौन थे भला, पता है? 4 खुलफा राशिदीन थे ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी विसाल हो गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरी तौर पे पर्दा फरमा गए थे, तो आपके बाद खलीफा बनाया गया था ना, किसको? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, ठीक है। वो पहले खलीफा थे इस्लाम के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे खलीफा कौन थे? जी जी बेटा, ये आपने सारा IAS की बुक्स में पढ़ा हुआ है, खुलफाए राशिदीन का दौर जो है ये सारा पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन ये है कि आप लोग सिर्फ रट्टे लगाते हो चीज़ों को, उसको आप सोचते नहीं हो, उन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं बिठाते हो कि हमने क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक्स पढ़नी है या क्या करना है। दूसरे खलीफा थे बेटा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर तीसरे थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे शाबाश, चौथे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये जो चारों दौर थे, इनको खुलफाए राशिदीन का दौर कहा जाता है। आप समझ आ गई? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो 4 खलीफा बने, उनका दौर जो था, खलीफा बेटा कहते हैं जैसे आजकल के दौर में हमारे लिए हमारे सरबराह जो हैं, किसी भी मुल्क के वो वज़ीर आज़म या सदर मुमलिकत होते हैं ना, पता है ना, अब तो ये तो बात आपको पता है। उस दौर में यही जो होता था, इसके ऊपर जो फ़ायद होता था इंसान, उसको खलीफा कहा जाता था। यानी वो पूरे इलाके की, पूरे उस एक मखसूस जो खित्ता होता था उसकी हुक्मरानी करते थे। तो खुलफा राशिदीन का जो दौर था, उसमें भी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के तमाम अहम पहलू जो आपने अमली नमूना पेश किया था, हर लिहाज से उनको पूरे तरीके से उनकी पैरवी की जाती थी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए खुलफा राशिदीन के दौर में रवादारी का भी ख़ास ख्याल रखा जाता था कि गैर मुस्लिमों की जो इबादत गाहें थीं, जैसे आपको पता है ईसाई जो हैं, जो वो किस जगह पे उनकी इबादत गाह को क्या कहते हैं? चर्च। चर्च। इसी तरह से यहूदी हैं, हिंदू हैं, हर एक का ना अपना वो एक इबादत गाह होती है, मंदिर होता है, किसी का कुछ होता है। उनका एहतराम करना, यानी उनको मस्मार नहीं करना, उनको गिरा नहीं देना कि ये जी गैर मुस्लिम हैं, हम इनके इबादत गाह को ख़त्म कर देंगे, इस किस्म का कोई तसव्वुर इस्लाम हमें नहीं देता, इस चीज़ से मना किया गया है, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि अगर बीइंग अ मुस्लिम हम उनकी इबादत गाहों का एहतराम नहीं करेंगे, तो वो ज़ाहिर है अगर हम उनसे नफ़रत करेंगे, उनसे गुस्से का इजहार करेंगे, तो बदले में वो भी हमारी इबादत गाहों से, हमसे, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से नफ़रत का इजहार करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो चीज़ आप खुद पेश करते हो ना अगले इंसान को, ऑटोमेटिकली अगला इंसान आपको बदले में वही देता है। अगर आप उन्हें इज़्ज़त देंगे, मोहब्बत देंगे, तो बदले में वो भी आपको, आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को इज़्ज़त ही देंगे। समझ आई बात? ओके। कुरान पाक में एक और भी बात बहुत खूबसूरत है बेटा, उसका भी तर्जुमा कुछ ये है कि जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, उनको बुरा ना कहना, कि कहीं बदले में वो भी अल्लाह की बेअदबी ना कर बैठें। वही बात जो अभी मैंने आपसे कही है, ये बाकायदा कुरान पाक में इसका जिक्र है, सूरह अल-अनाम की आयत 108।
अल-अनाम की सूरत है और उसकी आयत नंबर 108 में इस बात का जिक्र है कि जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, यानी वो चूँकि इस्लाम कबूल नहीं करते, मुशरिकीन उनको कहते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाता। ठीक है, तो कहा यह गया है कि आप उनके खुदा की, उनके जिनकी वो पूजा करते हैं, आप उनको बुरा भला मत कहो, ऑल्दो आप उनको नापसंद करते हो, लेकिन आपने क्या कहना है, खामोश रहना है वहाँ पे। क्यों? ताकि अगर आप बुरा भला कहोगे तो फिर बदले में वो भी आपके रब को, आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहेंगे, नाउज़ बिल्लाह, और उनकी बेअदबी करेंगे। ओके, समझ रहे हो ना इस बात को? ठीक। फिर उसके बाद है बेटा अगला पॉइंट ये भी है कि किसी को खुश करने के लिए अकीदा या नज़रिया बदलना ये रवादारी के ख़िलाफ़ है। अकीदा क्या होता है? अकीदा क्या होता है? ये अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी, ये क्या है? इस्लाम कबूल कर लेना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानना, बेटा ये क्या है? ये अकीदा है हमारा, यानी किसी बात को दिल से तस्लीम कर लेना और उसका ज़ुबान से इकरार कर देना क्या होता है? अकीदा कहलाता है। ठीक है, तो किसी दूसरे इंसान को खुश करने के लिए आप को अपना अकीदा जो है वो कभी भी तब्दील नहीं करना चाहिए। यानी जो बात आपका दिल कहता है ना कि ये ठीक है, और आप ज़ुबान से उसका इकरार भी करते हो, वो ठीक है। हम कलमा पढ़ते हैं, ठीक है, मुसलमान होने की पहली शर्त क्या है? कलमा पढ़ते हैं ना हम, जिसमें हम अल्लाह को एक मानते हैं और ये तस्लीम करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये है पहले कलमे का तर्जुमा, और इसको जिसने पढ़ लिया वो क्या हो गया? मुसलमान हो गया। तो बेटा ये क्या है? ये अकीदा है, अकीदा है। यानी यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं, रवादारी के अंदर, इसका टॉपिक के अंदर इसका जिक्र इसलिए किया गया है कि अगर कोई आपसे कह दे, फ़र्ज़ करें आपका कोई गैर मुस्लिम दोस्त है, ठीक है, वो आपसे कह दे जी कि आप अपना अकीदा चेंज कर लो, तो क्या आप मान जाओगे? नहीं मानोगे। शाबाश। क्योंकि वो किस चीज़ के ख़िलाफ़ होगा? वो रवादारी के ख़िलाफ़ होगा, और वो इसमें इस्लाम के दायरा से वो इंसान जो है वो खारिज हो जाता है अगर वो किसी दूसरे को खुश करने की खातिर सिर्फ अपना अकीदा तब्दील कर ले तो। फिर उसके बाद अगला पॉइंट ये भी है कि हर इंसान के बुनियादी और फितरी हुकूक बराबरी की बुनियाद पर अदा किए जाएं। ठीक है, यानी देखिए अकीदा एक चीज़ है कि हर इंसान को हक़ है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, उसका हक़ है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करे। बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम उनके साथ ज़बरदस्ती करें, उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने की तरफ दावत दें। ये ऐसे ही है बेटा, जैसे अगर हम आपको, जब तक हम आपको प्यार से समझा के पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप दिल से तालीम हासिल करो, ठीक है, आप पूरी तवज्जो दो इसको, ये अलग, इसका जो तासुर होगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो एक अलग होगा। लेकिन अगर हम आपको मार मार के ज़बरदस्ती खूब स्टिक्स लगा लगा के कहें कि नहीं भी पढ़ना है, तो वक्ती तौर पे तो आप करोगे वो काम डर की वजह से, लेकिन क्या होगा कि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपके ऊपर उसका तासुर कायम नहीं रहेगा, उस चीज़ का फ़ायदेमंद नहीं होगी वो चीज़ आपके लिए अगर ज़बरदस्ती हम करवाएंगे तो। सेम यही बात जो है ये यहाँ पे अप्लाई हो जाती है कि अगर आप ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करने पे की तरफ लाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो शख्स जो है उसके दिल में आपका, आपके नबी, आपके अल्लाह का वो एहतराम, वो इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। बात तो असल ये है ना कि आप इस तरह का इखलाक पेश करो, इस तरह से अपने अमल से ये चीज़ साबित करो कि भाई मुसलमान क्या होता है, इस्लाम हमें किस बात की तालीम देता है, किस बात के दर्स देता है। उस चीज़ को जब आप अमली तौर पे पेश करोगे तो चाहे वो इंसान गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसके दिल में ऑटोमेटिकली आपके लिए और आपके अल्लाह और रसूल के लिए मोहब्बत और अदब पैदा होगा। ठीक है ना? यही आपका आखिरी पॉइंट है कि हर इंसान का ये बुनियादी और फितरी हक़ है कि उसके हुकूक़ को और उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए और उनका ख्याल रखा जाए। यानी किसी किस्म की कोई ना तफरीक नहीं होनी चाहिए बहैसियत इंसान। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये किसके अंदर आते हैं? रवादारी के। ये सब कुछ रवादारी है बेटा, जिसका दर्स हमें इस्लाम देता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म फरमाया है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी? आप किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो इस हवाले से? ठीक है, आप अमल करोगे इन सारी बातों पे? पक्की बात है? चलें बेटा, आज का लेसन फिर ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।